Hello students, good morning. Welcome to Essays Online Classes. Student, we were reading chapter 4, Subject and Predicate of our English language book Cornerstone. In our last video, our topic was Subject and Predicate. So student, we have read about Subject and Predicate with example in our last video. And student, we have also read and solved exercise of vision page number 10 and exercise A vision page number 11 of this chapter 4 in our English language book Cornerstone in our last video. And students, today's our topics are verbs and our next topic is interrogative sentences. So students, today we will read about verbs and interrogative sentences with example in our today's class. And after this, students, we will read and solve exercise B. Underline the subjects in these interrogative sentences, which is page number 12 in our English language book Cornerstone. And last, we will read and solve exercise A. Answer the following questions of this chapter 4 in our Fair English language notebook in our today's class. Okay, so all students, special listener and listen to my words clearly, because today we will read about verbs and interrogative sentences with example, and then we will read and solve exercise B, which is page number 12 in our English language book Cornerstone. And last, we will read and solve exercise A. Answer the following questions of the chapter 4 in our Fair English language notebook. Okay, so all students, look at the page number 11. Firstly, we are going to read about verb. Okay, so students, let's see a noted point of verb. Verbs such as am, is, are, was and was can also be used as helping verbs. Okay, verbs means क्रियाएं, such as means जैसे कि am means हूँ, is means है, are means है, was means था, and means और, were means थे, can also be used as helping verbs. Helping verbs means सहायक क्रिया. ओके, तो स्टूडेंट, ये जो क्रियाएं हैं जैसे am, is, are, was and were, इनका उपयोग सहायक क्रिया की तरह भी किया जा सकता है. ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ब हैं, क्रियाएं हैं, am, is, are, was, were, तो इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, सहायक क्रिया के रूप में भी कर सकते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, हमारी जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, वो टू टाइप से होती है. फर्स्ट हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया. सेकेंड हमारी होती है वर्ब मेन वर्ब. ओके, इट्स इन मुख्य क्रिया. तो स्टूडेंट, हमारी हेल्पिंग वर्ब के इंक्लूडेड आती है इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, वुड, शुड, कुड. ओके, तो ये सारे वर्ड्स हमारे आते हैं हेल्पिंग वर्ब के इंक्लूडेड, सहायक क्रिया के अंतर्गत. और स्टूडेंट्स, हमारी जो सेकेंड टाइप होती है मेन वर्ब में स्टूडेंट्स होता है मुख्य क्रिया. ओके, इसके इंक्लूडेड आता है टीचिंग, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, राइटिंग, लर्निंग. ओके, जितने भी हमारे एक्शंस हो, जो ऐसे वर्ड जो एक्शन को शो करते हैं, वर्क करते हैं, वो हमारे सारे मेन वर्ब होते हैं, मुख्य क्रिया होती है. क्लियर? So students, now we are going to read about interrogative sentence. Okay, so let's see. Learn means सीखिए. Now read these sentences. Now means up, read means पढ़िए, this means in, sentences means वाक्य. Okay, now read these sentences. It's mean अब इन वाक्यों को पढ़िए. So let's read these sentences. Your first number sentence is इज हरीश एंड वेल. Okay, तो स्टूडेंट्स, अनवेल मीन्स होता है अस्वस्थ या बीमार. ओके, इज हरीश एंड वेल, इट्स मीन क्या हरीश अस्वस्थ है या क्या हरीश बीमार है. ओके, सो स्टूडेंट, लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस. योर सेकंड नंबर सेंटेंस इज हैज़ करीम लेफ्ट. ओके, इट्स मीन क्या करीम चला गया है. ओके, स्टूडेंट, लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस. और थर्ड नंबर सेंटेंस इज रितु अराइविंग फ्रॉम लंदन टू नाइट. ओके, तो स्टूडेंट, अराइविंग मीन्स होता है आना, आगमन होना. टू नाइट मीन्स आज की रात. ओके, तो स्टूडेंट, द मीन ऑफ दिस थर्ड नंबर सेंटेंस इज दैट क्या रितु आज रात लंदन से आ रही है. फ्रॉम लंदन है ना, तो क्या रितु आज रात लंदन से आ रही है. ओके, सो स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट द पेज नंबर 12. Okay, and let's read more about interrogative sentence. Notice that in these interrogative sentences, okay, तो इससे नोटिस में जान दीजिए, दैट मीन्स कि इन दीज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इट्स मीन इन प्रश्नवाचक वाक्य में. ओके, सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विच वी हैव रीड. ओके, जो हम रीड कर चुके, जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, इज हरीश एंड वेल, हैज़ करीम लाफ्ट, इज रितु अराइविंग फ्रॉम लंदन टुडे. ओके, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य थे, तो इसमें आपने नोटिस किया. ओके, इट्स मीन ध्यान दिया. नोटिस दैट मीन्स ध्यान दीजिए कि इन दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट्स मीन इन प्रश्नवाचक वाक्यों में. ओके, दिस सब्जेक्ट इट्स मीन करता. ओके, कम्स मीन्स आता है, आफ्टर मीन्स बाद में, दी हेल्पिंग वर्ब इट्स मीन सहायक क्रिया. ओके, नोटिस दैट इट्स मीन ध्यान दीजिए कि इन प्रश्नवाचक वाक्यों में करता इट्स मीन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इट्स मीन सहायक क्रिया के बाद आता है. तो स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट होते हैं ना करता, वो प्रश्नवाचक वाक्यों में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में उसका प्लेस क्या होता है? उसका प्लेस होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में. ओके, सहायक क्रिया के बाद में. Here are some more examples. यहाँ पे कुछ और उदाहरण है. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल. योर फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल इज डू दे स्लीप एट 9 PM एवरी डे. ओके, स्टूडेंट्स, पीएम दी फुल फॉर्म ऑफ पीएम इज पोस्ट मैरिडियम. ओके, तो स्टूडेंट्स, पोस्ट मैरिडियम इट्स मीन आफ्टरनून 12 o'clock से नाइट टाइम जो 12 o'clock का टाइम होता है, उसके लिए हम पीएम का यूज़ करते हैं. ओके, एंड एवरी डे मीन्स स्टूडेंट होता है प्रत्येक दिन. ओके, द मीन ऑफ दिस फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल इज दैट कि क्या वे प्रत्येक दिन रात 9 बजे सोते हैं या क्या वे हर दिन रात 9 बजे सोते हैं. ओके, एवरी डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन या हर दिन. क्या वे प्रत्येक दिन रात 9 बजे सोते हैं या क्या वे हर दिन 9 बजे सोते हैं. ओके, रात में 9 बजे सोते हैं. क्लियर? लेट्स सी सेकंड नंबर एग्जांपल. योर सेकंड नंबर एग्जांपल इज वाज किम प्लेइंग इन द पार्क. ओके, तो स्टूडेंट्स, पार्क मीन्स होता है बाग. ओके,
प्लेइंग इट्स मीन होता है खेलना, ओके खेल रहा था। तो स्टूडेंट द मीन ऑफ दिस सेकंड एग्जांपल इज दैट क्या किम पार्क में इट्स मीन बाग में खेल रहा था, ओके क्या किम बाग में खेल रहा था, क्लियर। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी एक्सरसाइज भी, ओके वी हैव रीड अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। और स्टूडेंट्स हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना उनका एंड हमेशा किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है, ओके। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, ओके इट्स मीन प्रश्न करते हैं, और इनका जो क्लोजिंग पंक्चुएशन होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क, ओके एंड वी कैन सी दैट बोथ एग्जांपल एंड विथ क्वेश्चन मार्क, क्लियर। सो स्टूडेंट्स वी हैव रीड अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके एंड we have learned that in interrogative sentences subject come after helping verb, okay जो सब्जेक्ट होता है करता होता है वो हेल्पिंग वर्ब के इट्स मीन सहायक क्रिया के बाद में आता है, क्लियर। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी एक्सरसाइज बी, नाउ वी आर गोइंग टू रीड एंड सॉल्व एक्सरसाइज बी, ओके सॉल्व स्टूडेंट्स लेट्स एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी इज अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स इन दीज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके अंडरलाइन मीन्स रेखांकित कीजिए, दिस सब्जेक्ट मीन्स करता हूँ, इन मीन्स में, दिस मीन्स इन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, ओके इट्स मीन कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को अंडरलाइन कीजिए, ओके इन वाक्यों में कर्ता को रेखांकित कीजिए, ओके। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज बी, योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज इच करम इन टाउन, ओके। तो स्टूडेंट्स इच करम इन टाउन, टाउन मीन्स होता है कस्बा, ओके इट्स मीन क्या करण कस्बा में है, ओके इच करण इन टाउन इट्स मीन क्या करण कस्बे में है, ओके। सो स्टूडेंट्स इन दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस योर सब्जेक्ट इज करण, आपका जो सब्जेक्ट है करता है वो क्या करण है, ओके। सो स्टूडेंट अंडरलाइन दिस वर्ड करण, क्लियर बिकॉज इट्स योर सब्जेक्ट, ओके। एंड स्टूडेंट लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस, योर सेकंड नंबर सेंटेंस इज हैव द टीचर्स गॉन ऑन अ पिकनिक, ओके इट्स मीन कि क्या शिक्षक पिकनिक पर गए हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स इन दिस सेकंड नंबर सेंटेंस योर सब्जेक्ट इज द टीचर्स, ओके। सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन बिलो वर्ड्स द टीचर्स, क्लियर बिकॉज इट्स योर सब्जेक्ट, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है। लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस, योर थर्ड नंबर सब्जेक्ट इज योर थर्ड नंबर सेंटेंस इज डिड कृष्णा फॉल ऑफ द बेड, ओके फॉल ऑफ मीन्स हियर द मीन ऑफ फॉल ऑफ मीन्स होता है कि गिरना, ओके तो इट्स द मीन ऑफ दिस थर्ड नंबर सेंटेंस इज दैट क्या कृष्णा बिस्तर से गिर गया, ओके बेड मीन्स बिस्तर, क्या कृष्णा बिस्तर से बेड से गिर गया, क्लियर। सो स्टूडेंट इन दिस थर्ड नंबर सेंटेंस कृष्णा इट्स योर सब्जेक्ट, क्लियर कृष्णा क्या है सब्जेक्ट है करता है, क्लियर। सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन बिलो दिस वर्ड कृष्णा बिकॉज इट्स योर सब्जेक्ट। लेट्स सी फोर नंबर सेंटेंस, योर फोर नंबर सेंटेंस इज आर दी पपीज फॉर सेल, ओके पपीज मीन्स होता है स्टूडेंट्स डॉग्स पे भी वी कॉल्ड पपी, ओके कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं पपी, पपी मीन्स पिल्ला, पपीज इट्स मीन पिल्ले, ओके सेल मीन्स बेचना या बिक्री करना, इट्स मीन कि क्या पिल्ले बिक्री के लिए या क्या पिल्ले बेचने के लिए, ओके। सो इन दिस फोर नंबर सेंटेंस योर सब्जेक्ट इज दी पपीज, ओके। सो स्टूडेंट्स underline below these words the puppies, okay। let's see five number sentence, so five number sentence is can Damin pick up his dog's feet one hand, okay तो students here the mean of desk means होता है desk या मेज, okay and student the mean of this five number sentence is that कि क्या डेमियन, ओके क्या डेमियन एक हाथ से अपना डेस्क उठा सकता है, ओके क्या डेमियन एक हाथ से अपना डेस्क से अपना मेज उठा सकता है, डेस्क मीन्स होता है टेबल मेज या डेस्क भी बोल सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स इन दिस फाइव नंबर सेंटेंस डेमियन इट्स योर सब्जेक्ट, सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन बिलो दिस वर्ड डेमियन बिकॉज इट्स योर सब्जेक्ट। लेट्स सी सिक्स नंबर सेंटेंस, योर सिक्स नंबर सेंटेंस इज दैट will you take the dog out for a walk, okay so students the meaning of this six number sentence is that क्या तुम कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर ले जाओगे, ओके सो इन दिस सिक्स नंबर सेंटेंस यू इट्स योर सब्जेक्ट, ओके सो स्टैंड्स अंडरलाइन बिलो दिस वर्ड यू बिकॉज इट्स योर सब्जेक्ट, ओके। लेट्स सी सेवन नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, योर सेवन नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज दैट डू यू लाइक वनीला आइसक्रीम, ओके क्या आप वनीला आइसक्रीम पसंद करते हैं, ओके या क्या आपको वनीला आइसक्रीम पसंद है, ओके सो स्टूडेंट इन दिस सेवन नंबर सेंटेंस यू इट्स योर सब्जेक्ट, ओके सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन बिलो दिस वर्ड यू बिकॉज इट्स योर सब्जेक्ट। लेट्स सी एट नंबर सेंटेंस, एट नंबर सेंटेंस इज हैव द गेस्ट्स अराइव्ड, गेस्ट्स मीन्स स्टूडेंट्स मेहमान, ओके इट्स मीन कि क्या मेहमान आ गए या क्या मेहमान आ चुके हैं, ओके सो स्टूडेंट्स इन दिस एट नंबर सेंटेंस द गेस्ट्स इट्स योर सब्जेक्ट, सो स्टूडेंट्स below underline below this word the guests, okay because it's your subject। let's see nine number sentence, or nine number sentence is did सुनीता कम ऑन टाइम, ओके तो इट्स मीन क्या सुनीता समय पर आई, ओके या क्या सुनीता समय पर आई थी, ओके सो इन दिस नाइन नंबर सेंटेंस सुनीता इट्स योर सब्जेक्ट, ओके सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन बिलो दिस वर्ड सुनीता बिकॉज इट्स योर सब्जेक्ट, क्लियर। लेट्स सी टेन नंबर सेंटेंस विच इज लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज भी, योर टेन नंबर सेंटेंस इज आर यू मूविंग इनटू योर न्यू हाउस, ओके आर यू मूविंग इनटू योर न्यू हाउस मीन्स नया घर, ओके इट्स मीन द मीन ऑफ दिस टेन नंबर सेंटेंस इज दैट क्या आप अपने नए घर में जा रहे हैं, ओके सो स्टूडेंट इन दिस टेन नंबर सेंटेंस यू इट्स योर यू इट्स योर सब्जेक्ट, क्या आपका सब्जेक्ट है करता है, क्लियर। सो स्टूडेंट इन दिस एक्सरसाइज भी योर सब्जेक्ट्स आर करण
the teachers, Krishna, the puppies, Damian, you, the guests, Sunita, and last you. Okay, so students learn. Okay, सीखिए. Now students we have noticed okay, हमने नोटिस किया है, हम नोटिस कर चुके हैं कि all these sentences, इन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. ओके, जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहे हैं. ओके, तो हमने यही तो रीड किया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आते हैं ना. तो लुक क्लियरली कि स्टूडेंट्स सब्जेक्ट कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इन ऑल दीज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इन सभी प्रश्नवाचक वाक्यों में जो सब्जेक्ट है ना वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहे हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, now we are going to read and solve exercise A. Okay, and students, I hope you must have understood this exercise B, which we have completed. Okay, and I hope you have no problem in any sentence of this exercise B. Okay, so students, let's see exercise A. Your exercise A is answer the following questions. Okay, students, we are reading chapter 4, and the name of this chapter 4 is subject and predicate. Subject means karta and means, or predicate means vidhi. Okay, subject and predicates mean karta or vidhi. Okay, let's see exercise A now. The exercise A is answer the following questions. It means निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Your first number question is how many parts can a sentence be divided? Okay, it's mean एक सेंटेंस को, एक वाक्य को कितने पार्ट्स में, कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है. ओके, एक वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट नंबर आंसर इज अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, इट्स मीन कि एक सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एक वाक्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है. ओके, सब्जेक्ट इट मीन कर्ता एंड मीन्स, और प्रेडिकेट मीन्स विधि. ओके, तो एक वाक्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, कर्ता और विधि. क्लियर? लेट्स सी एग्जांपल. मीता बॉट अ केक कस्टर्ड. ओके, इट्स मीन मीता बॉट मीन्स खरीदा. बॉट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ बाय मीन्स खरीदना, बॉट मीन्स खरीदा, आ मीन्स एक. ओके, केक मीन्स केक. ओके, अस्टर्डी मीन्स कल. ओके, तो मीता बॉट अ केक अस्टर्डी, इट्स मीन मीता ने कल एक केक खरीदा था, या मीता ने कल एक केक खरीदा. क्लियर? इन दिस सेंटेंस मीता इट्स योर सब्जेक्ट. ओके, हु बॉट अ केक अस्टर्डी, कल किसने केक खरीदा था, तो मीता बॉट अ केक अस्टर्डी. ओके, तो स्टूडेंट्स योर सब्जेक्ट इज मीता. ओके, आपका सब्जेक्ट मीता है, एंड बॉट अ केक अस्टर्डी इट्स योर प्रेडिकेट. क्लियर? तो बॉट अ केक अस्टर्डी ये आपका प्रेडिकेट है, विधि है. क्लियर? लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन. योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द सब्जेक्ट. ओके, इट्स मीन कि सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है. ओके, सो स्टूडेंट्स, योर सेकंड आंसर इज द सब्जेक्ट इज अ पार्ट दैट टेल अस हु और व्हाट दिस सेंटेंस इज अबाउट. ओके, इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द पर्सन और थिंग. ओके, द सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, इट मीन्स है, द पार्ट मीन्स भाग, दैट मीन्स जो, टेल अस मीन्स हमें बताता है, हु मीन्स कौन, और मीन्स याद, व्हाट मीन्स क्या, द सेंटेंस मीन्स वाक्य, इट मीन्स है, अबाउट मीन्स बारे में. ओके, इट परफॉर्म्स द एक्शन, ये एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्शन को प्रदर्शित करता है. ओके, इट मीन काम को शो करता है, काम को प्रदर्शित करता है, ऑफ द पर्सन और थिंग. ओके, एक व्यक्ति के या थिंग के, एक वस्तु के. ओके, द मीन ऑफ दिस सेकेंड नंबर आंसर इज दैट कि कर्ता वह भाग है. ओके, जो हमें ये बताता है कि कर्ता वह भाग है जो हमें ये बताता है कि वाक्य क्या है और किसके बारे में. ओके, सेंटेंस क्या है और किसके बारे में. ओके, कर्ता वह भाग है, और किसका पार्ट है, सब्जेक्ट सेंटेंस का पार्ट होता है, वाक्य का भाग होता है. ओके, तो वी कैन से दैट कर्ता वाक्य का वह भाग है जो हमें बताता है कि वाक्य किसके बारे में है या क्या है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, इट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द पर्सन और थिंग. ओके, तो इट मीन्स या परफॉर्म मीन्स होता है प्रदर्शित करते, द एक्शन मीन्स स्टूडेंट्स होता है क्रिया, काम, ऑफ द पर्सन इट्स मीन व्यक्ति की, और मीन्स अथवा, थिंग मीन्स वस्तु या चीज़. ओके, यह व्यक्ति या वस्तु की क्रिया को प्रदर्शित करता है, ये व्यक्ति या वस्तु के काम को शो करते हैं. ओके, काम को प्रदर्शित करते हैं. लेट्स एग्जांपल ऑफ दिस सेकेंड नंबर आंसर. ओके, द माउस एट द चीज एंड रैन अवे. ओके, द माउस मीन्स चूहा, एट मीन्स खाया, एट द सेकंड फॉर्म ऑफ ईट, इट मीन्स खाना, इट मीन्स खाया. ओके, द चीज मीन्स पानी, एंड मीन्स, और रैन अवे मीन्स भाग गया. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, द मीन ऑफ दिस एग्जांपल इज दैट कि चूहे ने पनीर खाया और भाग गया. क्लियर? स्टूडेंट, रेन इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ रन मीन्स दौड़ना, भागना, एंड रैन मीन्स भाग गया या दौड़ गया. ओके, भाग गया या दौड़ के चला गया. ओके, तो चूहे ने पनीर खाया और भाग गया. क्लियर? तो स्टूडेंट, इन दिस एग्जांपल द माउस एट द चीज एंड रैन अवे, द माउस इट्स योर सब्जेक्ट, जो माउस है ना ये आपका सब्जेक्ट है, करता है. क्लियर? लेट्स सी थर्ड नंबर क्वेश्चन. योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, इट्स योर सब्जेक्ट द माउस. ओके, आपका जो सब्जेक्ट है वो माउस है, एंड द रीजन ऑफ इट दैट बिकॉज इट सो द एक्शन. ओके, ये एक्शन को शो कर रहा है. ओके,
हु एट दी चीज एंड रन अवे, किसने पनीर खाया और भाग गया, तो दी माउस एट दी चीज एंड रन अवे, चूहे ने पनीर खाया और भाग गया। ओके, तो ये एक्शन को शो कर रहा है, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट करता है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। यो क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मे दी सब्जेक्ट कंसिस्ट। ओके, इट्स मीन कि एक कर्ता कैसे बना हो सकता है, कंसिस्ट मीन्स बना होना। ओके, सो स्टूडेंट्स द आंसर ऑफ द थर्ड नंबर क्वेश्चन इज दैट द सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड और इट में कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, इट्स मीन कि एक कर्ता, ओके, द सब्जेक्ट, ओके, इट्स मीन कि द सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ओके, में कंसिस्ट में बना हो सकता है, ऑफ मीन्स का ओनली वन वर्ड, सिर्फ एक शब्द का, और मीन्स अथवा इट में कंसिस्ट, ओके, ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और एक शब्दों के समूह का बना हो सकता है। ओके, इट्स मीन कि कर्ता केवल एक शब्द से बना हो सकता है या यह शब्दों के एक समूह से बना हो सकता है। ओके, तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो वन वर्ड भी हो सकता है, एक शब्द का भी हो सकता है, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, एक शब्दों का समूह भी हो सकता है। लेट्स एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द बॉय हिड इनसाइड द कबर्ड। ओके, द बॉय मीन्स लड़का, हिड मीन्स छिप गया, हिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ हाइड, हाइड मीन्स छिपना, हिड मीन्स छिप गया, इनसाइड मीन्स अंदर, द कबर्ड मीन्स अलमारी। ओके, द बॉय हिड इनसाइड द कबर्ड, इट्स मीन लड़का अलमारी के अंदर छिप गया। ओके, लड़का अलमारी के अंदर छिप गया। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सी सेकंड नंबर एग्जांपल। ये सेकंड नंबर एग्जांपल इज गीता एंड गणेश वेंट टू शिलोंग। इट्स मीन गीता और गणेश शिलोंग गए। क्लियर? वेंट इज द सेकंड फॉर्म गो मीन जाना, वेंट मीन्स गए। क्लियर? तो स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट इन दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस द बॉय हिड इनसाइड द कबर्ड, द बॉय इट्स अ वन वर्ड सब्जेक्ट। ओके, ये एक शब्द वाला सब्जेक्ट है, एक शब्द वाला करता है, एंड गीता एंड गणेश इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट, ये शब्दों के एक समूह वाला सब्जेक्ट है। क्लियर? So students, let's see question number 4. Your question number 4 is what do place of a subject in a declarative sentence? It's mean एक कथात्मक वाक्य में कर्ता का क्या स्थान होता है? Okay, so students, your fourth answer is this subject comes before the verb in a declarative sentence. To identify this subject, we ask the question who or what before the verb. Okay. तो दी सब्जेक्ट मीन्स कर्ता कम्स मीन्स आते बिफोर मीन्स पहले, दी वर्ब मीन्स क्रिया, इन मीन्स में, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स एक कथात्मक वाक्य। ओके, इट्स मीन एक कथात्मक वाक्य में सब्जेक्ट इट्स मीन कर्ता वर्ब के पहले आता है। ओके, क्रिया के पहले आता है। इट्स मीन कि एक कथात्मक वाक्य में कर्ता क्रिया के पहले आता है, जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के पहले आता है। ओके, टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। ओके, अब सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, इट्स मीन कर्ता को पहचानने के लिए, वी आस्क द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछते, प्रश्न पूछते, हु और व्हाट, इट्स मीन कौन और क्या, बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले। ओके, तो कर्ता को पहचानने के लिए हम वर्ब के पहले, क्रिया के पहले कौन या क्या का क्वेश्चन करते, कौन या क्या का प्रश्न करते। लेट्स एग्जांपल, द चिल्ड्रन बिल्ड अ स्नोमैन। ओके, इट्स मीन द चिल्ड्रन, इट्स इन बच्चों। ओके, बिल्ड, here the meaning of build means बनाया, build is the second form of build means बनाना, build means बनाया। ओके, a snowman means एक बर्फ का पुतला। ओके, तो the children built a snowman, it's mean बच्चों ने बर्फ का एक पुतला बनाया। ओके, तो स्टूडेंट्स, who built a snowman? ओके, किसने बर्फ का एक पुतला बनाया, तो the children built a snowman। ओके, बच्चों ने बर्फ का एक पुतला बनाया। So student, we can see in this example सब्जेक्ट कम बिफोर वर्ब, जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के पहले आ रहा है। क्लियर? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन है, और वर्ब क्या है, बिल्ट है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है दी चिल्ड्रन वो वर्ब के पहले आ रहे हैं। क्लियर? और हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब जो है हमारा बिल्ट, इसके पहले हु और व्हाट को रखे, तो वो हम यहाँ पे हु को पुट करें। ओके, तो हु बिल्ट अ स्नोमैन, किसने एक बर्फ का पुतला बनाया, तो दी चिल्ड्रन बिल्ट अ स्नोमैन। ओके, बच्चों ने बर्फ का एक पुतला बनाया। क्लियर? तो हमें दी चिल्ड्रन से फाइंड आउट हो गया ना, तो दी चिल्ड्रन इट्स अवर सब्जेक्ट। क्लियर? लेट्स सी 5 नंबर क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन in our today's class. Okay, so let's see. Your question number 5 is what is the predicate? Okay, it's mean कि एक predicate क्या, एक विधेय क्या है। So students, your 5 number answer is the predicate is a part of a sentence that tells us what the subject does or is. Okay, it's mean the predicate में विधेय, okay, या विशेषण, it means है the part of a sentence, वाक्य का एक भाग, that means जो tell us means हमें बताता है what the subject does, कि करता क्या करता है, और is, it's mean और क्या है। okay, तो विधेय जो प्रेडिकेट होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है और क्या है। ओके, विधेय वाक्य का एक भाग होता है जो हमें ये बताता है कि करता क्या करता है और क्या है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी एग्जांपल ऑफ प्रेडिकेट। ओके, अन्ना ड्यू पिक्चर्स ऑफ मैरमेड्स। ओके, तो अन्ना ड्यू मीन्स बनाया, ड्यू इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ ड्रॉ मीन्स बनाना, ड्यू मीन्स बनाया, पिक्चर्स मीन्स चित्र, ऑफ मीन्स का, हियर द मीन ऑफ मैरमेड्स मीन्स जो होते हैं मत्स्यांगों या जलपरियाँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, द मीन ऑफ दिस एग्जांपल इज दैट अन्ना ने जलपरियों का चित्र बनाया। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस एग्जांपल अन्ना इट्स और सब्जेक्ट, अन्ना आपका सब्जेक्ट है। ओके, हु ड्यू पिक्चर्स ऑफ मैरमेड्स। ओके, किसने मैरमेड्स का, किसने जलपरियों का पिक्चर बनाया, तो अन्ना
ने बना, अन्ना ड्यू पिक्चर्स ऑफ मरमेडस. ओके, तो अन्ना इट्स योर सब्जेक्ट, बट ड्यू पिक्चर्स ऑफ मरमेड इट्स मीन जलपरियों का पिक्चर बनाया, इट्स अ प्रीडिकेट, या आपका प्रीडिकेट है, विधेय. क्लियर? बिकॉज इट टेल अस अबाउट अन्ना. ओके, अन्ना के बारे में बता रहा है. ओके, बिकॉज ये अन्ना के बारे में बता रहा है जो हमारा सब्जेक्ट था. ओके, कि व्हाट इज़ अन्ना डूइंग. ओके, कि अन्ना क्या कर रही है, तो अन्ना ड्यू पिक्चर्स ऑफ मरमेड्स. ओके, अन्ना जलपरियों का चित्र बना रही है, जलपरियों का पिक्चर बना रही है, उनकी तस्वीर बना रही है जलपरियों की. ओके, तो ये अन्ना के वर्क को शो करे कि अन्ना क्या करती है. ओके, तो स्टूडेंट्स ड्यू पिक्चर्स ऑफ मरमेड इट्स अ प्रीडिकेट. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव read and solved this exercise and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any answer of this exercise of chapter 4. Okay, so students, today's your classwork is that complete exercise B, which is page number 12 of this chapter 4 in your English language book cornerstone. And after students, note down exercise and answer the following questions of this chapter 4 in your Fire English language notebook. It's your today's classwork, and so your homework is that learn exercise B and exercise A of this chapter 4. इट्स अ टुडेज होमवर्क. आपका क्लास वर्क है, आपको एक्सरसाइज भी अपनी बुक पे कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज है आपको अपनी फायर इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक पे नोट डाउन करनी है. इट्स अ टुडेज क्लास. आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज ए लर्न करनी है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बहुत एक्सरसाइज बी एंड ए. यू हैव आल्सो must understood your class 1 homework. Okay, so all students, firstly complete your class work, complete exercise B, which is page number 12 of this chapter 4 in your English language book cornerstone. And after students, note down exercise A of this chapter 4 in your Fire English language notebook and send me your work here. Thank you.